we are continuing from page 130. The central theme of Back to Godhead was clearly the order of Bhakti Siddhanta Saraswati. In its cover, with its picture of a thoughtful Srila Bhakti Siddhant, in its dedication, in its statement of the magazine's purpose, in its handling of issues, its analysis of theosophy, the prediction of the spread of Sankirtan, in its every aspect, the theme of Back to Godhead was the order of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati. तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो बैक टू गॉड हेड मैगजीन थी उसमें जो कुछ भी अभय ने मेंशन किया था वो वास्तव में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का की आज्ञा थी. वट एवर ही पोस्टेड, वट एवर ही मेंशनड, उसमें श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का हॉटफुल पिक्चर था. उसमें जो भी डेडिकेशन था, जो भी उस मैगजीन का पर्पस था, जो भी इश्यूज वगैरह चल रहे थे उस टाइम पर युद्ध वगैरह के, ये सारी चीजें, और ये जो भी थियोसफी वगैरह है, इन सब के विषय में जो भी सारी चीजें हैं, ये सब कुछ श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की ही आज्ञा थी, आज्ञा को प्रदर्शित कर रही थी. देयर वर ऑल्सो 4 शॉर्टर essays by other contributors including Bhakti Sarang Goswami. An advertisement on the back cover highlighted Geetopnishad by Abhay Charan Dev, editor and founder Back to Godhead, in 3 parts, 1200 pages, royal sized first class Morocco binding. तो पीछे इस तरह से लिखा था, वो चीज बताई जा रही है. An elaborate exposition of the world-famous Hindu philosophy, the Bhagavad Gita, in its true scientific, theistic interpretations by the chain of disciplic succession from Sri Krishna, Brahma, Narada, Vyasa, Madhava, Madhvendrapuri, Ishwarpuri, लॉर्ड चैतन्य, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कृष्णदास, कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ, बलदेव, जगन्नाथ, ठाकुर भक्ति विनोद, गौर किशोर, ठाकुर सिद्धांत सरस्वती, डाउन टू द ऑथर विथ न्यूमरस इलस्ट्रेशंस इन कलर्स एंड प्लेन फ्रॉम मेनी ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स. तो इस तरह से पूरी ये जो प्रामाणिक गुरु परंपरा है उसका एक इलस्ट्रेशन था. आप सबने देखा भी होगा, इस तरह से वो आता 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 प्रभुपाद जी लास्ट में होते उसमें. हालांकि इसमें प्रभुपाद जी नहीं थे, वो श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी तक था, जिस तरह से दिखाया गया था. टू बी पब्लिश शॉर्टली, कस्टमर्स बुक्ड इन एडवांस प्राइस इंडिया ₹80. एंड a second major work, Lord Chaitanya, in 2 parts totaling 1000 pages. Neither of these manuscripts was actually near completion, but Abhay was expressing his eagerness to undertake such large works on behalf of his spiritual master. अब ये जो भी थे, दूसरा उनका जो काम चल रहा था जिसमें महाप्रभु से रिलेटेड ही 2 पार्ट्स थे और टोटल पेज थे उसमें 1000. तो उसमें से जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी ये कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी अभय ही वाज एक्सप्रेसिंग हिज ईगरनेस कि जल्द से जल्द ये सारा उनको करना है उनके गुरु महाराज के बिहाफ पर. In attempting to print the second issue of Back to Godhead, Abhay encountered the same difficulty as before. अब दूसरा जो मैगजीन प्रिंट करने जा रहे थे अभय, बैक टू गॉड हेड का सेकेंड इशू, सेकेंड पार्ट, तो उसमें अब उनको पहले जैसी ही डिफिकल्टी आ रही थी. क्या डिफिकल्टी थी? पहले गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस थे, पेजेस वगैरह नहीं दे रहे थे वो अभय को प्रिंट करने के लिए.
Twice he requested permission to purchase newsprint and twice the government denied his request. Paper was restricted on account of the war. On July 10, 1944, Abhay wrote a third letter. तो दोबारा से उन्होंने जब रिक्वेस्ट की तो दोबारा से उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो डिनाई हो गई और ये सब कुछ रेस्ट्रिक्शंस युद्ध की वजह से हो रहे थे। अब है तीसरा लेटर इस तरह से लिखते हैं। With due respect, I beg to submit that under the instruction of His Divine Grace, Sri Srimad Bhakti Siddhant Saraswati Maharaj, the spiritual head of the Gaudiya Vaishnavas, I had to start a paper under the caption Back to Godhead. The very name will suggest the intention of starting such a paper in the midst of heavy turmoil through which the world is now passing. A copy of the same booklet is sent herewith for your kind perusal. In that booklet, you shall find strong world opinions, even by many reputed politicians all over the world, in favor of such a movement to bring back the world into sanity by training the mind and educating human nature for the unshaking spiritual plane. Considered to be the supreme need of mankind, humankind. I hope you will kindly go through the paper by making some time and I may draw your attention especially to the introductory portion. तो वापस से तीसरे लेटर में अभय क्या लिखते हैं उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन करते हुए अभय लिखते हैं कि ये जो बैक टू गॉड हेल्थ मैगजीन वे छाप रहे हैं ये वास्तव में उनके जो गुरु महाराज हैं उनके इंस्ट्रक्शन पर छापा जा रहा है द वेरी फर्स्ट थिंग और ये जो छापा जा रहा है जो भी पब्लिश करवाना चाहते हैं वे प्रिंट करवाना चाहते हैं उसके पीछे का इंटेंशन क्या है अभी की जो स्थिति चल रही है जिससे जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं उनका निर्मूलन होने के लिए उनको सहायता मिलेगी किनको लोगों को तो जो भी रेप्यूटेड पॉलिटिशियंस वगैरह है उनके द्वारा कही गई बातें पूरे वर्ल्ड में जो भी विख्यात पॉलिटिशियंस वगैरह है लीडर्स वगैरह है उनके फेवर में जो बातें हैं वो सारी चीजें कौन सी फेवर वाली बातें रिलेटेड टू सैनिटी रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी वो सारी बातें इस मैगजीन में होंगी जो लोगों को एजुकेट करेगी सही डिसीजन लेने में कि वास्तव में कौन से मार्ग पर चलने से उनका कल्याण होगा और ये जो भी दुविधाएं हैं अभी उनको वो कैसे पार कर पाएंगे तो इस तरह से अब है ये सारी चीजें उन्होंने अपने तीसरे लेटर में मेंशन की टू गेट द परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट Abhay also remarked that the editorial board of Back to Godhead felt that there was not so much a scarcity of paper as a scarcity of education. Taking the opportunity to preach, Abhay explained that although the ultimate supplier was the Supreme Personality of Godhead, godless men consider themselves the proprietors of the things. तो एक और चीज अभय ने क्या मेंशन की जो बहुत अमेजिंग थी कि जो पेपर है उसकी ज्यादा शॉर्टेज नहीं है जितनी लोगों को एजुकेशन की शॉर्टेज है कौन सा एजुकेशन कि कौन सा सही मार्ग है जिस पर चलकर उनका परम कल्याण होगा catastrophe that is now in vogue in the present war of supremacy is guided by this false sense of proprietorship and therefore there is need of making propaganda amongst all human beings in order to bring them back to the sense of the ultimate proprietorship of Godhead. अब है ये अपॉर्चुनिटी चाहते थे कि वे प्रचार करें
और इस चीज को एक्सप्लेन करे कि अल्टीमेट जो सप्लायर है, जो भी वस्तुएं हमारे पास आ रही हैं, वो वास्तव में भगवान हमें दे रहे हैं, और परम भोक्ता भगवान है वास्तव में। लेकिन एक जो नास्तिक व्यक्ति है, वो खुद को सभी वस्तुओं का भोक्ता समझता है, प्रोप्राइटर समझता है। तो एक कैटेस्ट्रोफ करके है, जो अभी उस समय ट्रेंड पर था, युद्ध के समय में, जिसमें वो लोगों को इसी तरह से फॉल्स गाइडेंस दे रहे थे कि भाई हम भोक्ता है, वी आर दी प्रोप्राइटर। तो इस फॉल्स, ये जो फॉल्स गाइडेंस है, इसका खंडन करने के लिए इस मैगजीन का बहुत ज्यादा जरूरी है पब्लिश होना, ताकि लोग समझे और वे अपनी जो वास्तविक चेतना है उसको ग्रहण करें। Abhay considered that there might indeed be a paper shortage in India, but in ancient times, he wrote, enlightened Indians had regularly sacrificed tons of valuable ghee and grains in the fire during religious sacrifices. And in those times, there had not been any scarcity. People now, however, having abandoned all sacrifices to the Supreme Lord, were producing only scarcity. कितनी सुंदर बात अभय प्रभुपाद जी का बता रहे हैं कि अभय ने ये चीज भी बताई कि अभी भारत में पेपर शॉर्टेज चल रहा हो, लेकिन पहले के समय में जहां पर लोग बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उस समय में भी शुद्ध घी और अनाज की आहुति वगैरह वे करते थे यज्ञ में, यज्ञ वगैरह जो भी वे करते थे, तो उस समय भी कोई भी स्केर्सिटी नहीं थी, स्केर्सिटी शॉर्टेज वगैरह नहीं थी। लेकिन क्यों? क्योंकि लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ठीक है, दिन ब दिन एडवांस होने के बाद में भी इतनी स्केर्सिटी क्यों है? क्योंकि लोग अब भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई यज्ञ नहीं करते। और इस कलयुग का जो यज्ञ है वह क्या है? वो आहुति वगैरह देना तो नहीं है, जो भी यज्ञ वगैरह लगाते हैं, पर भगवान के नामों का जप, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ है इस कलयुग का महान यज्ञ। तो आप देख रहे हैं भगवान ने कितना इजी कर दिया है कि भाई ठीक है, अब पता है कलयुग के टाइम पर बढ़िया, एटलीस्ट इस टाइम पर आप देखेंगे शुद्ध घी मिल पाना तो बहुत ही रेयर है, और आगे जाकर तो बिल्कुल ही ये खत्म ही हो जाएगा। वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह भी हम जो भी लेते हैं, वो भी कहाँ केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक कहाँ मिलेंगे आपको? तो ठीक है, भगवान को पता है कि सब कुछ केमिकल का है, तो आहुति वगैरह भी देगा तो क्या ही देगा। लेकिन आप देखेंगे भगवान ने कितना इजी कर दिया कि भगवान के नाम संकीर्तन से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सो दिस इज द हाईएस्ट यज्ञ ऑफ दिस टाइम, एज ऑफ कली। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ यज्ञ नहीं कर रहे, इस वजह से दे आर प्रोड्यूसिंग ओनली स्केर्सिटी। Can we not therefore sacrifice a few reams of paper in the midst of many wastages for the same purpose in order to derive greater benefit for the humankind? I request that the government should take up this particular case in the light of spiritualism, which is not within the material calculation. Even in Great Britain, the government has immensely supported a similar movement called the moral rearmament movement without consideration of the scarcity of paper, which is more acute there than here. तो अभी कह रहे हैं अपने लेटर में ही सारी बातें कह रहे हैं कि क्या हम कुछ पेपर्स सेक्रीफाइस नहीं कर सकते?
बहुत सारी चीजें तो कितनी वेस्ट होती है। पर क्या हम ये जो मैसेज है मानवता का कि कैसे जीव का कल्याण होगा, ये मैसेज पहुंचाने के लिए क्या हम कुछ पेपर सेक्रीफाइस नहीं कर सकते? सो ही इज रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट कि वो कुछ एक्शन ले। ये जो भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो ये एक प्रकाश है, ये लोगों तक पहुंचे, जो भौतिकतावादिता के लिमिटेड नहीं है, यहीं तक लिमिटेड नहीं है ये चीज। फिर ग्रेट ब्रिटेन का एग्जांपल दे रहे हैं कि वहां पर भी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था। बल्कि वहां पर तो फिर भी जितनी कमी यहाँ नहीं है, उससे भी ज्यादा कमी वहां पर थी पेपर की। उसके बाद में भी उन्होंने, क्योंकि वो जो मूवमेंट जो भी उन्होंने चलाया दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, इसलिए उन्होंने किया। Let there be a page only, if not more, for the publication of Back to Godhead, for which we do not mind, but my earnest request is that the government should at least let there be a ventilation of the atmosphere for which my paper Back to Godhead is meant. Kindly, therefore, give it a serious consideration and allow me to start even by one page every weekly or monthly as you think best without thinking it as ordinary waste of paper for the sake of humanity and Godhead. So he's again requesting government कि समझे कि इसको वेस्ट वगैरह ना समझकर एक इन्वेस्टमेंट समझे जो वास्तव में लोगों का हित करेगा। जो अभी वातावरण चल रहा है उससे लोग ऊपर उठेंगे इसके माध्यम से। किसके माध्यम से? पब्लिकेशन ऑफ बैक टू गॉड हेड्स। The letter was successful. Now, with veiled sarcasm, he headlined his second issue. Thanks to the government of India, he informed his readers, many of whom had been disappointed to learn that the government had curtailed his printing, that he would be able to continue his magazine every month. Abhay printed his letter to the government paper officer and also the reply granting him permission. अब उनका जो लेटर था इट वाज सक्सेसफुल, गवर्नमेंट जो थी वो मान गई थी। लेकिन कुछ जो लोग थे, ओके नो, लेटर वाज सक्सेसफुल और अब जो मतलब प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी। एंड ही वॉज अबाउट टू रोड अनदर लेटर टू थैंक गवर्नमेंट। और उन्होंने कुछ रीडर्स को भी इन्फॉर्म किया जो पहले डिसअपॉइंटेड थे थोड़े कि गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है अब इस तरह से मैगजीन वगैरह छापे। तो लेकिन अब उन्होंने ये बात उनको भी बताई, जो रीडर्स थे उनको भी कुछ लेटर्स वगैरह लिखे कि गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है और वो अब हर महीने अपनी मैगजीन प्रिंट करना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभय ने अपना जो लेटर है वो गवर्नमेंट पेपर ऑफिसर को भेजा and also reply granting him permission. His articles were shorter, this time displaying the flair of a news columnist, as with philosophical criticism, verve, and a touch of ironic humor, he commented on world leaders and crisis. Gandhi Jinha talks, Mr. Churchill's humane world, Mr. Bernard Shaw's wishful desire, and spontaneous love of Godhead comprised the issue. तो अब आगे बताया जा रहा है उन्होंने क्या स्पेसिफिक टॉपिक्स रखे। देखिए सारे जो टॉपिक्स हैं अब है किस चीज से रिलेटेड रख रहे थे, अभी की जो सिचुएशन चल रही थी उससे रिलेटेड रख रहे थे ताकि लोगों को हेल्प मिले कि उन्हें करना क्या है।
आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, कर ही देंगे, ज्यादा पेजेस नहीं है। Gandhi Jinnah talks. We are sorry to learn that Gandhi Jinnah talks about unity of the Indian people have failed for the present. Abhay was not very optimistic about the results of such occasional talks between several heads of communities, even if they made a successful solution. It would break up and take the shape of another problem. They were looking for unity between Muslims and Hindus, but in Europe, the fighting parties were Christians, and in Asia, they were mostly Buddhist. But still, they were fighting. So, fighting will go on between Mohammedan, between Hindus and Hindus, or between Mohammedan and Mohammedan, between Christians and Christians, and between Buddhist and Buddhist, till the day of annihilation. एनिहिलेशन मतलब प्रलय। प्रलय तक ये जो भी विवाद है ये लोगों को चलता ही रहेगा। तो गांधी जिना टॉक्स में बेसिकली क्या था, जो मतलब ये जो भी टॉपिक था, इसमें चाह रहे थे कि जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो भी झगड़ा है वो समाप्त होकर सब अपने अपने एक दूसरे के मित्र हो जाए। लेकिन अब है यहाँ क्या चीज बता रहे हैं कि लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, मुसलमान मुसलमान से लड़ेगा, हिंदू हिंदू से लड़ेगा। मतलब सिर्फ बात ऑपोजिट धर्म की नहीं है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है। दूसरी जो कंट्री है यूरोप, वहां पर तो क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट आपस में लड़ रहे थे। तो ये चीज चलती रहेगी यहां तक कि हिंदू हिंदू से लड़ेंगे, क्रिश्चियन क्रिश्चियन से लड़ेंगे, जब तक प्रलय नहीं हो जाती तब तक ये चीजें चलती रहेगी। और इसका एकमात्र कारण क्या है? मिथ्या अहंकार, कि मैं इस धर्म का हूं, वो उस धर्म का है। तो भाई ये धर्म धर्म के विषय में ही अगर व्यक्ति खुद की गलत पहचाने करेगा, समझ ही नहीं पाएगा दैट ही इज फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ लॉर्ड, तो फिर ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है कि लड़ाई कभी भी समाप्त होगी ही नहीं। और कब तक नहीं होगी? प्रलय तक। और आप ये देखिए ना कि ठीक है, अभी भक्त प्रचार वगैरह कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो भगवान की भक्ति करें, पर ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा का पूरा पूरी पृथ्वी पर एक एक व्यक्ति वो भगवान की भक्ति एक्सेप्ट करके भक्ति करने लग जाएगा। मतलब डेफिनेटली आगे जाकर वो भक्ति करेगा, पर ऐसा तो नहीं है ना कि अभी कलयुग चल रहा है तो भाई कलयुग में फ्रीडम मिली है, बढ़िया। क्या मिला है? ऑफर मिला है इतना सस्ता कि सिर्फ हरि नाम करो और भगवान के पास लौट जाओ। तो सबको तो ये बातें नहीं समझ में आएगी ना। तो ये झगड़े चलते रहेंगे प्रलय तक। एज लॉन्ग एज देयर वॉज द कंटेमिनेटेड सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, देयर वुड बी फाइटिंग बिटवीन ब्रदर एंड ब्रदर, एंड फादर एंड सन, एंड नेशन। चलो भाई धर्म की भी बात मत करो, धर्म की भी बोल रहा है। आप देखेंगे घर में भी भाई भाई से लड़ रहा है, या पिता बेट जो पुत्र है वो लड़ रहे हैं। तो ये सब कुछ इसका कारण क्या है? इंद्रिय तृप्ति। और इंद्रिय, ये सारी चीजें देखिए कनेक्टेड हैं। मिथ्या अहंकार है कि भाई मैं ये हूं वो हूं, और इस वजह से इंद्रिय तृप्ति करने के लिए व्यक्ति दूसरों से द्वेष करने को भी तैयार हो जाता है। लेकिन अगर वह समझेगा कि उसका भगवान से संबंध क्या है, तो उसका मिथ्या अहंकार भी नष्ट, प्लस अब भगवान से संबंध समझा तो भगवान केंद्र में हो जाएंगे, तो इंद्रिय तृप्ति केंद्र में नहीं होगी। लेकिन जब तक इंद्रिय तृप्ति है केंद्र में, तो ये जो अज्ञान है तब तक लड़ाई झगड़े होंगे। Real unity would stand only on a plane of transcendental service to Supreme. Mahatma Gandhi, Abhay wrote, is far above ordinary human being, and we have all respects for him. But Abhay advised Gandhi to give up his activities on the material plane and rise to the transcendental plane of the spirit.
then there could be talks about the unity of all people. अब I cited Bhagavad Gita's definition of a Mahatma, one who concentrates his attention on the service of the Supreme Lord, Sri Krishna. He requested Mahatma Gandhi to adhere to the teachings of Bhagavad Gita and preach its message of surrender to the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. In this way, Mahatma Gandhi, through his influential position in the world, could bring about universal relief simply by preaching the message of Bhagavad Gita. तो अब है यही लिखते हैं कि महात्मा गांधी जो साधारण लोग हैं उनसे उनसे ऊपर है, मतलब है वो भी इंसान ही, उस समय थे इंसान ही, लेकिन एक पोस्ट की बात आप समझ लीजिए कि जिस तरह से एक साधारण व्यक्ति सोचता है उससे थोड़ा ऊपर वे सोचते थे। तभी तो इस तरह से वो, आप देखिए एक लीडर बनना, लीडर व्यक्ति कब बनेगा जब वो कुछ साधारण जो व्यक्ति है उनसे कुछ ऊपर का वो सोचता है, तभी तो वो लीडर बनता है और दूसरों को वो लीड करेगा। तो अभी यही बात बता रहे दैट यस ही ही इज फार अबव ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, और हम सभी की उसके उनके प्रति रेस्पेक्ट है। और आप देखेंगे यहाँ पर बात बताई जा रही है कि अभय ने महात्मा गांधी को एडवाइस भी किया था। क्या एडवाइस? कि ये जो भी झमेलों में पड़ रहे हैं, कौन से झमेले, कि ये जो भी लड़ाई झगड़े खत्म कराने हैं, हमें हिंदू मुस्लिम को दोस्त बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, तो इन सब को छोड़ने के लिए अभय गांधी जी को कह रहे थे। और क्या कह रहे थे कि आप भगवत गीता का जो वास्तविक ज्ञान है उसको फॉलो करिए, अपना जो अटेंशन है आप किस चीज पर कंसंट्रेट करिए, भगवान की सेवा में कंसंट्रेट करिए और लोगों को भी इसी तरह आप भगवान की सेवा में लगाइए। तो भगवत गीता से ही श्लोक कोट करते हुए महात्मा गांधी को अभय समझा रहे थे कि एक वास्तव में महात्मा वही है जो भगवान की सेवा में लगा है। तो वे चाह रहे थे कि भगवत गीता का जो वास्तविक सार है वो लोगों को प्रचार करे महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी ही वॉज एन इन्फ्लुएंस ही वॉज इन इन्फ्लुएंशियल पोजिशन दैट टाइम। काफी लोग उनको फॉलो कर रहे थे, काफी क्या ऑलमोस्ट सभी लोग उनको फॉलो कर रहे थे। तो अगर वे इस तरह से भगवान का प्रचार करते हैं जगत में, तो वास्तव में लोगों का परम हित हो सकता है और वास्तव में जो भी सिचुएशंस चल रही हैं उससे वे रिलीफ हो सकते हैं सिर्फ भगवान के प्रचार मात्र से। तो इस तरह से ये हुआ गांधी जिन्हा टॉक्स। नेक्स्ट आता है मिस्टर चर्चिल्स ह्यूमन वर्ल्ड। तो ये बात आप समझे, गांधी जी को कहा तो था अभय ने, पर गांधी जी माने नहीं थे अभय की बात। बट स्टिल मतलब प्योरिटी वो अपने जीवन में फॉलो कर रहे थे। ही वॉज फॉलोइंग सेलिबेसी इन हिज लाइफ, और भगवत गीता को भी वो भगवत गीता पढ़ते थे, लेकिन वो जो उनके श्लोक थे वो उनको किसी दूसरे वे में क्या कहेंगे, उनका मतलब जो डायमेंशन था वो कुछ अलग था। भगवत गीता की सीधी सीधी बात समझ कर सीधी सीधी बात बताने की जगह उनका कुछ दूसरा ही डायमेंशन था। इस वजह से प्रभुपाद जी कहते हैं दैट ही वॉज ऑलमोस्ट अ वैष्णवा। ठीक है, आगे देखते हैं मिस्टर चर्चिल्स ह्यूमन वर्ल्ड। We are pleased to find that leaders of world politics such as Mr. Churchill have nowadays begun to think of a human world and trying to get rid of the terrible national frenzy of hate.
ह्यूमन वर्ल्ड का मतलब एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो वह जगत जहां पर हर एक हर एक मनुष्य की बात होगी, ह्यूमंस, जीव की बात नहीं कर रहे, हर एक मनुष्य को एज अ फ्रेंड डील करना, उसको मतलब उसके प्रति कंपैशन होना हृदय में। तो आप देखिए कि काफी सारी ऐसी होती है ऑर्गेनाइजेशंस कहेंगे या क्या कहेंगे या ग्रुप कहेंगे, जिसमें अलग अलग धर्म के लोग होते हैं जो अपनी अलग अलग धर्मों से पहचान करते हैं, बट दे एक्सचेंज नाइस बॉन्ड्स विथ ईच अदर। तो यहाँ जो मिस्टर चर्चिल थे वो यही इस चीज पर ही काम कर रहे थे। ही वॉज ट्राइंग कि ही वॉज ट्राइंग टू बिल्ड ह्यूमेन वर्ल्ड जहां पर हर एक जो मनुष्य है वो एक दूसरे से प्रेम व्यवहार कर रहा है, कुछ भी अपने हृदय में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव या बाकी सारी जो भी खराब चीजें होती है वो ना रखकर सबको अच्छे से ट्रीट करना, जो कि हेल्प करता है। ये जो एक यहाँ पर वर्ड है फ्रेंजी। ठीक है, फ्रेंजी मतलब वाइल्डनेस। The frenzy of hatred is another side of the frenzy of love. Hmm. The frenzy of love of Hitler's own countrymen has produced the concomitant frenzy of hatred for others, and the present war is the result of such dual side of a frenzy called love and hatred. Frenzy का मतलब होता है कि फ्रेंजी का अर्थ बताया जा रहा है वाइल्डनेस। अब देखिए इसका अर्थ आप समझिए, कोई भी व्यक्ति के हृदय में एक जो नेचुरल कंपैशन है, नेचुरल मतलब आप समझ रहे हैं कि उसको सोचना नहीं पड़ रहा है कि मुझे ये लोग मतलब अच्छे हैं, मुझे धर्म वगैरह भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना आई शुड आई शुड बिहेव रेस्पेक्टफुली एंड कंपैशनेटली विद देम। जो नेचुरल चीज है वो कब तक नहीं आ सकती, जब तक व्यक्ति अपना संबंध भगवान से नहीं समझेगा। नहीं तो देखिए ये चीज आ ही जाती है कि ये उस धर्म का है, मैं उस धर्म का हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरी ये पोजीशन है और उसकी वो पोजीशन है, ये सारी चीजें आ ही जाती है। तो यही चीज यहाँ पर अभय समझा रहे हैं। और ये फ्रेंजीनेस के कारण ही युद्ध अभी जो परिणाम था वो ये युद्ध था जो अभी चल रहा था। So when we wish to get rid of frenzy of hate, we must be prepared to get rid of the frenzy of so-called love. So that love is so-called. ठीक है, लग रहा है बाहर से कि वो प्रेम है, पर वो वास्तविक प्रेम कब तक नहीं हो सकता, जब तक भगवान केंद्र में ना हो। This position of equilibrium, free from love and hatred, is attained only when men are sufficiently educated. Until men were educated to see the soul within the body, the dual frenzy of love and hate would continue. ये बात समझ रहे हैं आप? जब तक व्यक्ति नहीं समझेगा कि भाई जो शरीर हमें सामने दिख रहा है वो हम नहीं है, या सामने वाला जो जिस शरीर में वो नहीं है, हम वास्तव में सभी आत्मा है, और हम सभी का जो लेवल है वो सेम ही है। अभी शरीर जो है वो हमें दिखता है कि भाई वो तो हमसे हाइट में बहुत लंबा है, या वो तो हमसे बहुत मोटा है, या वो तो हमसे बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन है उसका। लेकिन वास्तव में आत्मा की तो ये आत्मा में तो ये सारी भिन्नताएं नहीं है ना, वे तो समान रूप से भगवान कृष्ण का अंश है। तो जब तक व्यक्ति इस बात को नहीं समझेगा, ये जो डुअलिटी वाली चीज है ऑफ लव एंड हेट ये चलती रहेगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
This introspection, Abhay concluded, is easily attained by the service of Godhead. So, Mr. Churchill's humane word implies that we must go back to Godhead. तो ये सारे जो भी टॉपिक्स है पर्टिकुलर, इसमें अभय यही बात समझाने का ट्राई कर रहे हैं कि आप सबका आइडिया बहुत अच्छा है, बट इफ इट इज नॉट, आई मीन इफ इट इज नॉट कनेक्टेड टू गॉड, तो फिर वो जो है वो सफल नहीं होने वाला। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर बेर्नार्ड शॉज विशफुल डिजायर, ये थर्ड है, इसमें देखते क्या है। मिस्टर बेर्नार्ड शॉ हैज congratulated Mahatma Gandhi on the occasion of the latter's 76th birthday in the following words. I can only wish this were Mr. Gandhi's 35th birthday instead of his 76th. We heartily join with Mr. Shaw in his attempt to subtract 41 years from the present age of Mahatma Gandhi. But that does not respect our wishful desire. Neither Mr. Shaw nor Mahatma Gandhi nor any other great personality had ever been able to solve the problem of death. अब यहाँ पर जो मिस्टर बेर्नार्ड शॉ है, उन्होंने महात्मा गांधी को उनके बर्थडे की शुभकामनाएं दी, और उन्होंने किन शब्दों में शुभकामनाएं दी कि मेरी बस यही इच्छा थी कि महात्मा गांधी का ये जो जन्मदिन है, ये 35वां जन्मदिन होना चाहिए था। 76 को हिंदी में पता नहीं क्या बोलेंगे, 76 नहीं, आई डोंट नो। 76 बर्थडे की जगह 35th बर्थडे होना चाहिए था। अब ये बात क्यों बोल रहे हैं कि 76 बहुत मतलब ज्यादा एज हो गई है, और अब बहुत जल्दी मतलब बुढ़ापा आ ही गया है, और अब बहुत जल्दी मृत्यु तो आनी है। तो इस वजह से वे चाह रहे थे कि 35 ऐसे ही, कोई स्पेसिफिक उसका रीजन नहीं था, ऐसे एक स्पेसिफिक कुछ भी उन्होंने नंबर बोल दिया कि 35वां बर्थडे होना चाहिए था, ताकि अभी काफी टाइम और होता कि वो गांधी जी हमारे साथ में होते। लेकिन अब है यहाँ क्या बात बता रहे कि ये जो डेथ है, ये हमारी इच्छाओं की बिल्कुल भी, हमारी इच्छाओं का सम्मान नहीं करती है। मृत्यु हमारी इच्छाओं का सम्मान नहीं करती कि हम इच्छा कर रहे हैं काश वो 35वां उनका ये जन्मदिन होता 76 की जगह, या ये होता वो होता। हमारे इच्छा करने से कुछ भी नहीं होगा, ना तो हमारे इच्छा करने से, ना मिस्टर शॉ की इच्छा करने से, और ना महात्मा गांधी की इच्छा करने से, या कोई भी बहुत महात्मा हो इस जगत में, मतलब सो कॉल्ड महात्मा, उसकी इच्छा करने से कभी भी मृत्यु तो नहीं ही रुक सकती। और आप स्वयं देखेंगे भगवान कृष्ण स्वयं भगवत गीता में ये बात बताते हैं, जो भी भगवान बताए हैं कि ये जानने के बाद, जैसे एक हम ले लेते हैं श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्य, जिसमें भगवान बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को समझता है, वह इस देह को त्यागने के बाद मेरे पास आएगा और कभी भी इस भौतिक जगत में वह जन्म नहीं लेगा। मतलब इस देह को तो व्यक्ति को त्यागना ही होगा। भगवान ऐसा कहीं भी नहीं कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो इस देह में ही अमर हो जाएगा। जैसे हिरण्यकशिपु की थी या हिरण्याक्ष की थी, हिरण्यकशिपु की थी ये इच्छा कि मैं अमर हो जाऊं, तो वो तो कभी कोई हो ही नहीं सकता है। तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि जो मृत्यु है ये किसी का भी सम्मान नहीं करती, वो आएगी ही, और हमारी सिर्फ इच्छा मात्र से ये सॉल्व नहीं हो सकती प्रॉब्लम। द लीडर्स ऑफ नेशंस हैव ओपन मेनी फैक्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेपन्स फॉर द आर्ट ऑफ किलिंग, but none has opened a factory to manufacture weapons for protecting man from the cruel hands of death, although our wishful desires is always not to die. कितनी सुंदर बात है कि आप देखेंगे बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने कितनी फैक्ट्रीज खोली हुई है हथियार बनाने के लिए, और
उन हथियारों से क्या होता है? हत्या। लेकिन कोई भी फैक्ट्री ऐसा हथियार नहीं बना रही जिससे लोग मरने से बचे, उनको मृत्यु ना आए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात इस पर कहते हैं कि मृत्यु तो लोगों को वैसे भी आ रही थी, अब तुमने उसको अगर उसकी अवधि बढ़ा दी है, नहीं अवधि नहीं, मतलब मृत्यु अब लोगों को तेजी से आए, तो इसमें प्रगति क्या हुई? वास्तव प्रगति ये होती कि लोगों को मृत्यु से बचाया जाए, कि या उनको कभी मृत्यु ना आए। और आप देखेंगे हमेशा हमारी यही इच्छा है कि हमें कभी मृत्यु ना आए। ये बात यहाँ बताई जा रही है। Men were preoccupied with the problem of how to get bread, although this problem was actually solved by nature. Men should try to solve the problem of death. ये बात आप देख रहे हैं, हर कोई व्यक्ति बस चिंता कर रहा है कैसे उसका पेट, उसको बस पेट पालना है, कैसे उसको रोटी मिलेगी, रोटी मिलेगी, लेकिन वो तो प्रकृति के द्वारा मिल ही जाता है। लेकिन हमेशा व्यक्ति को ट्राई करना चाहिए कि वह मृत्यु की जो प्रॉब्लम है, वास्तविक प्रॉब्लम, इसको कैसे सॉल्व करें। तो जैसे टुडे व्हेन आई वेंट टू टेक फ्लावर्स फॉर कृष्णा, तो आते समय मैंने देखा था एक एक व्यक्ति को मैंने देखा, तो वो जो फुटपाथ होता है वहां पर ही उन्होंने एक कांच लगाया हुआ था और कुर्सी वगैरह डालकर बैठे थे, मतलब नाई था वो। तो मैं देख रही थी कि वो जो नाई है अपना इस तरह से यहाँ पर व्यापार लगा के बैठा है कि उसके कुछ, मतलब ही इज ऑल्सो केयरिंग कि उसकी रोजी रोटी आए। और आप देखेंगे हर कोई व्यक्ति बस इसी की चिंता कर रहा है कि कैसे उसकी रोजी रोटी उसको प्राप्त हो जाए। लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि मैं रोजी रोटी मुझे प्राप्त होगी, उससे मैं मेरा जीवन अच्छे से, मतलब आई एम सर्वाइविंग, आई एम डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ सर्वाइव वल, पर मैं सर्वाइव करूं किस लिए? मतलब मरने को नहीं कहा जा रहा। मैंने एक बार एक व्यक्ति को कहा था यही सेम चीज, कि सरवाइव हर कोई करना चाह रहा है पर वो सोच नहीं रहा कि सरवाइव करे क्यों। तो कहे तो मर जाए। अरे मरो, मर नहीं भाई, पर विचार तो करो कि भाई मैं जी क्यों रहा हूं, मतलब क्या यही सेम चीजें डेली करने के लिए? तो इस पर लोग विचार करते नहीं है। भगवत गीता टेल्स दैट द प्रॉब्लम ऑफ डेथ कैन बी सॉल्व्ड, although death is everywhere in the material world. One who attains to me, says Krishna, never has to take his birth again in the material world. There is a spiritual world, non destructible, and one who goes there does not come back to the region of death. Why should the leaders of the nations cling to the planet of their birth, where death is inevitable? Abhay concluded, we wish that in their ripe old age, Mr. Shaw and Mahatma Gandhi will make combined effort to educate men to learn how to go back to home, back to Godhead. तो आप देखेंगे भगवत गीता में वास्तव में समाधान दिया हुआ है कि व्यक्ति मृत्यु को कैसे पार कर सकता है। जिसमें भगवान मृत्यु, देखिए भौतिक जगत है तो मृत्यु हर जगह है। ये चीज आप देख रहे हैं कितना डेंजरस है वास्तव में ये जो वर्ल्ड है। थोड़ा सा भी हम कहीं पर कुछ हमें चोट भी लग जाती है तो कितनी पीड़ा होती है, स्पेशली सर्दी में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो आप देखिए ना, हम चाहते नहीं है हमें चोट लगे, जाने अनजाने में भी चोट लग जाती है तो कितनी पीड़ा होती है। और काफी लोगों की तो इतने भयानक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिनसे उनको मृत्यु आ जाती है। लेकिन वास्तव में इसको पार किया जा सकता है। और भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि जो मेरी प्राप्ति कर लेता है उसे कभी भी इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं लेना होता है। एक आध्यात्मिक जगत है जो जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है, और कोई भी व्यक्ति एक बार वहां पहुंच जाता है
तो वह कभी दोबारा मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि उसे अपना आध्यात्मिक देह प्राप्त हो जाता है, जो परमानेंट होता है, टेम्पररी नहीं होता है, शाश्वत होता है। तो क्यों यहाँ के जो लीडर्स हैं इस जगत के, उनको मतलब यहाँ पर, मतलब वो क्यों नहीं सोच पा रहे इस चीज को कि हम यहाँ पर जन्म लिए हैं जहां पर मृत्यु आएगी ही, तो इसको पार पार किया जा सकता है, क्यों नहीं ऐसा सोच पा रहे लोग। अब हैदराबाद ने क्या कंक्लूड किया कि हम आशा करते हैं, इच्छा करते हैं कि मिस्टर शॉ और महात्मा गांधी अपनी, जब उनकी परिपक्व अवस्था आ जाएगी बुढ़ापे में, तो वे मिलकर एफर्ट लगाएंगे लोगों को एजुकेट करने में कि कैसे वे भगवान के पास अपने वास्तविक घर को लौट सकते हैं। After two issues of Go Back to Godhead, Abhay had to stop. Printing was costly, but he kept writing regularly, working at the Gita Upanishad, turning out new articles and philosophical purports on the scriptures, even in the same book in which he wrote his pharmaceutical formulas. तो अब उनके दो जो पार्ट्स थे बैक टू गॉड हेड के, उसके बाद में प्रिंटिंग उन्होंने स्टॉप कर दी थी, क्योंकि अब प्रिंटिंग वॉज कॉस्टली। लेकिन वो निरंतर लिखना उन्होंने बंद नहीं किया था, लिख वे रहे थे, गीतोपनिषद पर वे काम कर रहे थे, और इस तरह से बस वो लिख रहे थे पर्पस वगैरह जो भी स्क्रिप्चर्स के थे उन पर, इस तरह से ये सारी चीजें। अब आगे देखिए 3-4 पेजेस हैं जो मतलब ज्यादा लग नहीं रहे हैं, बट अगर हम डिस्कशन करेंगे तो डिस्कशन करने में काफी टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से वी विल कंटिन्यू द रेस्ट पार्ट टुमारो। कल संडे है, कल कर सकते हैं हम, लीलामृत तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत। सो वी विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्री राम।